Good morning, students. Today's subject is primary health care. In primary health care, the second chapter is infection. ओके, सो इन्फेक्शन हमने कल पढ़ा, तो उसका एक टॉपिक है, उसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके, सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हमने बैक्टीरिया देखा है, कल बैक्टीरिया के बारे में देखा. ओके, सो बैक्टीरियाज, देर आर मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. वन ऑफ दैट इज बैक्टीरिया. ओके, बैक्टीरिया है, वायरसेस है, रिकेशिया है, फंगा है, algae. These are the microorganisms in which some of their causes the disease and some are helpful for the mankind. Okay, so मैं हमने कल क्लासिफिकेशन देखा बैक्टीरिया, व्हाट इज मीन बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन देखा हमने, कैरेक्टरिस्टिक देखा बैक्टीरिया का. आज हम पढ़ेंगे अबाउट द रिकेशिया. Okay, Rickettsia is one of the microorganism. They are very small unicellular organism. Okay, Rickettsia, this is the one type of microorganisms, and they are small unicellular gram-negative parasites. Their shape is changeable. The shape of the Rickettsia is changeable and spherical and rod shape. They have a typically bacterial cell wall and multiply by fission. They have typically bacterial cell walls, so, because they are eukaryotic. Eukaryotic means they have the cell membranes and the organelles nucleus are present. Okay, so this type of organisms is known as eukaryotic. Okay, they have a typically bacterial cell wall and multiply by a fission. Fission मतलब जो न्यूक्लियस अंदर रहता है, तो न्यूक्लियस फिजन हो जाता है, मतलब मल्टीप्लाई होने के टाइम उसके 2 पार्ट्स हो जाते हैं, 3 पार्ट्स, 4 पार्ट्स हो सकते हैं. ओके, द न्यूक्लियस फिजन इज अ रिएक्शन इन विच द न्यूक्लियस ऑफ द एटम स्प्लिट इनटू 2 और मोर. इसका जो डिवीजन होता है 2 या 4, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसको बोलते हैं फिजन. ओके, सो दे आर multiply by fission and they cause the disease like typhus fever and Q fever. ये जो रिकेशिया है वो कौन से डिजीज फैलाते हैं? टाइफस फीवर एंड क्यू फीवर. द नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज वायरस. तो virus they are non-cellular, ultra microscopic and disease causing a particle of organic matter which can grow and multiply within the host body. ये जो वायरसेस रहते हैं वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं. ओके, सो दे आर मल्टीप्लाई एंड दे आर देयर ग्रोथ एंड मल्टीप्लाई इज प्रेजेंट इन द होस्ट बॉडी. ओके, बाहर जो एनवायरनमेंट में वायरसेस है उनका कुछ भी मीनिंग नहीं है, वो है नॉन लिविंग थिंग्स. जब भी वो एंटर करते हैं बॉडी में, किसी होस्ट के बॉडी में, तो होस्ट के बॉडी में उनका ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन होता है. नहीं तो अदर देन दैट देयर इज नो मल्टीप्लिकेशन इन द एनवायरनमेंट और इन एनी मीडियम. ठीक है, तो वायरसेस क्या है? वायरसेस आर नॉन सेल्यूलर. Viruses are non-cellular, ultra microscopic. They are seen under electron microscope. Okay, they are not seen by a naked eye. They are much smaller than the bacteria and other organisms. Okay, their size measured in nanometer. Okay, so they are very small, very tiny. They are not seen under. They are not seen by a naked eye. They are seen under the electron microscope. This is causing particles of organisms matter which can grow and multiply within the host cell body. इसका मल्टीप्लिकेशन किधर होता है? होस्ट सेल बॉडी में. होस्ट क्या रहता है जी? जो बॉडी में जो शरीर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर कर सकता है और उधर बढ़ सकता है, उसकी उधर रहता है, उसकी ग्रोथ होती है, तो वो उसको क्या बोलेंगे? होस्ट. देयर genome is made up of DNA or RNA inside the protein shell known as capsid. जो वायरसेस का बाहर का लेयर रहता है प्रोटीन से, वो प्रोटीन से बना रहता है और इसको क्या बोलते हैं? कैप्सिड बोलते हैं. और इसके अंदर डीएनए और आरएनए जेनेटिक मटेरियल रहते हैं. ओके, दे आर नॉन सेल्यूलर, कैन नॉट मेक देयर ओन प्रोटीन्स. ओके, वो खुद के प्रोटीन्स खुद नहीं बना सकते. सो दे आर
when they are present in the host body, then they are make their own proteins. The virus cannot reproduce outside the host cells, and the virus infests prokaryotic and eukaryotic cell causing disease. So viruses के बारे में लिखो. Viruses are non-cellular. They are non-cellular, ultra microscopic. They contain RNA or DNA genetic material, and outside shell is made up of protein known as कैप्सिड. ओके, जो आउटसाइड लेयर है प्रोटीन का वायरस के, तो उसको क्या बोलते हैं? कैप्सिड. सो दे कैन नॉट देयर साइज वेरीज फ्रॉम टेन नैनोमीटर. इसका मीनिंग क्या है? नैनोमीटर टू 450 नैनोमीटर. साइज इसका नैनोमीटर में मेजर करते हैं. ठीक है. देन द शेप में बी स्फेरिकल, ओवल, रॉड लाइक. spherical, oval, rod like, hexagonous. Okay, shape varies in different shape in different for different viruses. Okay, they cause the many infectious diseases in humans, ranging from the common cold to high fetal disease like AIDS. Okay, they cause many infectious diseases ranging from common cold to fetal diseases like AIDS, yellow fever, etc. Okay, this is about all about the viruses. The viruses are non-cellular ultramicroscopic organisms. Ultramicroscopic मतलब they are not seen by a naked eye. They are seen under the electron microscope. They contain RNA or DNA genetic material, and the outside shell is made up of protein. Their outside shell is made up of protein known as capsid. They, their size varies from 10 nanometer to 450 nanometer. Their shape may be a spherical, oval, rod-like, and hexagonous. Okay, shape varies in different shape in different for different viruses. They cause many infectious diseases ranging from common cold to fetal diseases like AIDS, yellow fever, etc. Okay, सो वायरसेस के बारे में इतना ही जानिए कि ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स रहते हैं. और इसमें क्या क्या रहता है? आरएनए रहता है और डीएनए, दोनों भी नहीं रहते हैं.
या तो आरएनए रहता है या तो डीएनए रहता है। ओके, और आउटसाइड जो शेल रहता है वो प्रोटीन का बना रहता है, और वो प्रोटीन के शेल को क्या बोलते हैं, कैप्सिड। ठीक है, और इसका साइज कैसे रहता है, साइज वेरीज फ्रॉम 10 नैनोमीटर टू 450 नैनोमीटर। ओके, और इससे अलग अलग डिसीज हो सकते हैं, जैसे कि स्मॉलेस्ट डिसीज भी है जो नॉन हार्मफुल है, ह्यूमन बीइंग के लिए इतने भी हार्मफुल नहीं है, जैसे कि कॉमन कोल्ड, ये वायरस से हो सकता है, जैसे कि कोविड वायरस। ओके, और फिटर डिसीजेस मतलब घातक रोग भी हो सकते हैं, जैसे कि एड्स है, येलो फीवर है, ये किससे होते हैं, वायरसेस से, जैसे कि HIV वायरस है, HBsAg वायरसेस है। ओके, HBsAg मतलब हेपेटाइटिस बी वायरस। ओके, सो ये सब घातक है जो जिसमें एक पर्सन की डेथ भी हो सकती है, सो दैट इज कॉल्ड अ फिटर डिसीजेस। अंडरस्टैंड, दिस इज ऑल अबाउट द वायरसेस। नेक्स्ट, ये वायरसेस का क्लासिफिकेशन हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ द वायरसेस ऑन द बेसिस ऑफ द टिश्यू दे आर अफेक्टेड, कौन से टिश्यू पे वो अफेक्ट कर रहा है उससे उनका क्लासिफिकेशन डिपेंड है। जैसे कि एंट्रिक फीवर है, एंट्रिक फीवर में क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पे इफेक्ट हो जाता है। ओके, जो एंट्रिक फीवर है उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम इफेक्ट करते हैं, और डिसीज कौन सा हो सकता है, डायरिया हो सकता है, वोमिटिंग एंड नोशिया। Okay, then dermotrophic means dermatology or this term is for use for the skin. Okay, so whenever this term is come in the book, you should be understand this is about the skin. Okay, the dermatotrophic is means the skin and mucous membrane, तो इसमें कौन सा टिश्यू इफेक्ट हो जाता है, स्किन एंड mucous membrane. The disease caused by the dermatotrophic viruses is known as chickenpox, measles and herpes. Okay, ये सब डिसीजेस हो सकते हैं, कौन से, चिकन पॉक्स, मीजल्स एंड हर्पीज। तो थोड़ा लिख लीजिए अबाउट द वायरसेस, वायरसेस के बारे में क्लासिफिकेशन किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। Classification of viruses, it depend upon the group, टिश्यू दे इफेक्ट, कौन से साइड पे वो इफेक्ट कर रहा है इसी के ऊपर, एंड द डिसीज कौन सा हुआ है। जैसे कि एंट्रिक फीवर है, ये किस पे इफेक्ट करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। In एंट्रिक फीवर द वायरस अफेक्ट ऑन द डाइजेस्टिव सिस्टम, इससे क्या हो सकता है, डायरिया, वॉमिटिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज द dermatotrophic, it is affected on the skin and mucous membrane। तो इससे क्या हो, कौन से डिसीज हो सकते हैं, जैसे कि मीजल्स है, चिकन पॉक्स, हर्पीज। ओके, दिस टाइप ऑफ डिसीज ओके हो सकते हैं। नेक्स्ट इज द न्यूरोट्रॉपिक, न्यूरोट्रॉपिक कौन से सिस्टम पे इफेक्ट करता है, नर्वस टिश्यू। ओके, और इससे कौन से डिसीज हो सकते हैं, जैसे कि पोलियो है, पोलियो हो सकता है, देन रेबीज एंड एनसेफेलाइटिस। ओके,
ये सब क्लासिफिकेशन किया गया है वायरस का। देन अदर इज न्यूमोट्रॉपिक। ये किस पे अफेक्ट करता है? लंग टिश्यूज पे। एंड क्या हो सकता है इससे डिसीज? कॉमन कोल्ड हो सकता है, देन इन्फ्लुएंजा, एंड वायरल निमोनिया भी हो सकता है। देन वाइसरोट्रॉपिक। विसरोट्रॉपिक मीन्स इंटरनल ऑर्गन। विसरल ऑर्गन पे इफेक्ट करता है, जैसे कि इंटरनल एब्डोमिनल ऑर्गन, एब्डोमिनल पेल्विक ऑर्गन, जैसे कि येलो फीवर है एंड डेंगू फीवर। Okay, these are the classification of virus according to the, they are according to the टिश्यू दे अफेक्ट। ओके, कौन से टिश्यू पे वो अफेक्ट कर रहा है वैसे क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे कि एंट्रिक फीवर है, एंट्रिक फीवर में डाइजेस्टिव सिस्टम पे अफेक्ट करता है और उससे डिजीज कौन सा होता है? डायरिया एंड वॉमिटिंग। देन डर्मेटोट्रॉफिक से टिश्यू, कौन से टिश्यू अफेक्ट हो जाते हैं? स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। और डिसीज कौन से होते हैं? मीजल्स, चिकन पॉक्स एंड हर्पीस। न्यूरोट्रॉपिक नर्वस टिश्यू पे इफेक्ट करता है। देन डिसीजेस आर पोलियो, रेबीज एंड इंसेफेलाइटिस। न्यूमोट्रॉपिक लंग्स टिश्यूज पे इफेक्ट करता है और डिसीज कौन से हो जाते हैं? कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा। विसरोट्रॉपिक इंटरनल ऑर्गन पे इफेक्ट करता है, येलो फीवर, डेंगू जैसे डिसीज हो सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द वायरसेस। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोटोजुआ। नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज प्रोटोजुआ। सो वायरस का एक स्लाइड में हम देखेंगे। ये वायरसेस इस टाइप से दिखते हैं। सब वायरसेस का शेप अलग अलग रहता है। सो दिस इज द इंटरनल, देयर इज अ आरएनए और डीएनए genetic material, and this outside shell is made up of protein, and this shell is known as capsid। okay, जैसे कि यहाँ पे भी है, ये भी हेक्सागोनस वायरस है। दिस इज द स्पेरिकल वायरस, स्पेरिकल शेप। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे अबाउट द प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म इज प्रोटोजुआ। Protozoas are the unicellular, aerobic and eukaryotic organism। ओके, यूकैरियोटिक मतलब उसमें न्यूक्लियस है, ऑर्गेनल्स है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनल्स है, सेल मेम्ब्रेन है, तो इसको क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक। So they are the lowest and simplest form of all the animal life. They are unicellular organisms with a protoplasm clearly differentiated into nucleus and cytoplasm. They contain the structure is necessary to carry out the metabolism and reproduction. इसमें सब टाइप के स्ट्रक्चर रहते हैं, जैसे कि वो मेटाबॉलिज्म कर सके एंड रिप्रोडक्शन कर सके। प्रोटोजुआ, राइट अबाउट द प्रोटोजुआ, दे आर unicellular and eukaryotic। okay, unicellular and organism, and their cell wall
are made up of cellulose. सेल्यूलोज, ओके, सेल्यूलोज से बना रहता है सेल वॉल. And the protozoa have a flagellae, cilia, and pseudopodia. cilia cilia प्रेजेंट रहते हैं इसमें, फ्लैजिला और सूडोपोडिया, इसमें पी साइलेंट है. सूडोपोडिया मतलब जो उनके लेग्स रहते हैं, जैसे कि अमीबा है, उसको अमीबा कौन से भी शेप चेंज कर सकता है. ओके, सो दिस दे आउटसाइड जो वो पार्ट आता है उसको बोलते हैं सूडोपोडिया, उसके लेग्स. ओके, जो कि चेंज भी हो सकते हैं. दिस इज कॉल्ड सूडोपोडिया. ओके, इसको सूडोपोडिया बोलते हैं. सो प्रोटोजुआ हैव अ फ्लैजिले, सिलिया एंड सूडोपोडिया फॉर लोकोमोशन. मूवमेंट के लिए उनको क्या रहते हैं? फॉर लोकोमोशन, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे जाने के लिए उनको सिलिया प्रेजेंट रहते हैं, फ्लैजिलेस रहते हैं और सूडोपोडियास रहते हैं. ठीक है. दे हैव ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स. Protozoas. Under the unfavorable condition, some species of the protozoa form round, thick wall cysts, which are important for their survival and discipline. The protozoa multiply asexually by binary fission and multiple fission. बाइनरी फिजन. ओके, सो बाइनरी फिजन से वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं और मल्टीपल फिजन. They cause disease like amoebiasis, giardiasis, ये टाइप के डिसीज हो सकते हैं. ओके, सो प्रोटोजोआस आर यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक organism. Their cell wall are made up of cellulose, and protozoas have a cilia, flagellae or pseudopodia for locomotion. They have multiplied by a binary fission or multiple fission. They cause the disease like amoebiasis and giardiasis. Okay, this is all about the protozoas. So protozoas कैसे दिखते हैं? The some protozoas are like this. अमीबा रहता है, उसमें पैरामेशियम रहते हैं. These are the two main protozoas which are you are studying in the science in school. Okay, so these are the protozoas. Some protozoas are present. This is called a paramecium. ये पैरामेशियम है. And amoeba is there. Euglenia, it is one of the protozoa, Euglenia. ओके, सो प्रोटोजोआ से कौन से डिसीज हो सकते हैं? या तो अमीबियासिस, जियार्डियासिस जैसे डिसीज हो सकते हैं. ओके, नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म इज फंगाई. इसमें मोल्ड्स आते हैं एंड यीस्ट. द फंगस और फंगाई आर यूकैरियोटिक सेल्स विथ
ट्रू न्यूक्लियस। ये क्या है? फंगाई आर द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। They have unicellular or multicellular eukaryotic organisms. The fungi have a rigid cell wall made up of cellulose, and it is also known as काइटिन। ओके, इसको क्या बोलते हैं? काइटिन। सबके सेल वॉल का अलग अलग नाम है। जैसे कि वायरस में जो सेल वॉल है उसको क्या बोलते हैं? कैप्सिड। जो प्रोटोजोआ में सेल वॉल है उसको क्या बोलते हैं? सेलुलोज। ओके, इसके सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। ओके, एंड इन फंगाई द सेल वॉल इज रिजिड एंड इट इज ऑल्सो नोन एज काइटिन। Fungi